Good afternoon, students. So today we are going to discuss the fourth question of exercise 1.1, that is use the Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. Means Euclid division lemma, yesterday we have discussed about the Euclid division lemma. We have to show that the square of any positive integer is of the form of 3m or 3m plus 1. So for it we have to apply the Euclid division lemma. By the Euclid division lemma algorithm, a is equal to bq plus r, where 0 is less than equal to b, 0 is less than equal to r is less than b. Remainder should be equal to 0 or greater than 0 or less than but less than the divisor. A is the dividend, B is the divisor, Q is the quotient, and R is the remainder. We have to express that the any positive integer can be expressed in the form of 3m, 3m plus 1. So for it, we will assume that b is equal to 3, and in this division algorithm a is equal to bq plus r. We will substitute the value of this b. It becomes a is equal to 3q. First of all, you can write here as a is equal to 3q plus r. 0 is less than equal to r is less than 3. So what are the values of r? R is equal to 0 because the equal sign is there, so r is equal to 0, but r is less than 3, so it means three cases arises, that is 0, 1 and 2. For these three cases we have to substitute the values. First of all, when remainder is equal to this, r is the remainder, when r is equal to 0, so substitute this value of r in this equation. A is equal to 3q plus r here is 0, so it becomes a is equal to 3q. Now in this question we have to show that the square of any positive integer. So squaring on both the sides, we get a square is equal to 3 square is 9 and q square 9q square. But we have to show that the square of any positive integer is of the form of 3m. So we have to take 3 as a common factor. So taking 3 as a common factor, we get 3q square. 3 को common निकालना है और बाकी टर्म्स को विद इन द ब्रैकेट ही रहने देना है. 3 इंटू 3q स्क्वेयर, एंड दिस 3q स्क्वेयर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज m. So where m is equal to 3q square, so that we get 3m here. Okay, now the second case, when the remainder is equal to r is equal to 1, a is equal to 3q plus r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1. Now squaring on both the sides, we get a square is equal to 3q plus 1 whole square. A plus b whole square, that is 9q square plus 6q plus 1. Taking 3 as a common factor, तो फर्स्ट देखो 3 जो है वो इन टू टर्म्स में कॉमन है, तो 3 इज टेकिंग एज कॉमन, वी गेट 3q स्क्वेयर प्लस 2q, एंड दिस 1 इज ऑलरेडी दैट इज अ कांस्टेंट, और इसमें से हम 3 को कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इट शुड बी लाइक दिस. 3 is common from these two numbers and 1 is like this. So 3, this 3 can be written as such, and this 3q square plus 2q, it is represented by some another constant, that is m2, 3m2 plus 1, where m2 is equal to, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो ये m2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3q square plus 2q. Third case, when r is equal to 2, a is equal to 3q plus 2, a square is equal to 3q plus 2 whole square, we get a plus b whole square 9q square plus 12q plus 4. Now ये जो 4 है, हमें स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1. तो इन द फर्स्ट केस वी गेट 3m1, तो इट कैन बी रिटन एज 3m. ठीक है, और ये 3m2 plus 1 मीन्स 3m plus 1. तो स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है. तो यहाँ पे ये जो 4 है, इसमें से भी हमने 3 को कॉमन निकालना है, तो 3 को कॉमन कैसे निकालेंगे, 4 शुड बी लाइक दिस, 3 plus 1, 4 के फैक्टर्स बना लेंगे इन टर्म्स ऑफ 3.
तो 4 कैन बी रिटन लाइक दिस 3 प्लस 1। तो ये जो 3 है इसको 9 क्यू प्लस 12 क्यू प्लस 3 के साथ कंबाइन करके फैक्टर्स निकालेंगे। 3 इज कॉमन, 3 क्यू 4 क्यू प्लस 1 कॉमन निकाल लिया जब इस 3 में से, तो 1 आ जाएगा। और ये जो 1 अलग से है ये वैसे ही रहेगा। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3m3 प्लस 1 वेयर m3 इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1। Therefore, the square of any positive integer can be expressed in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. क्लियर। तो इस इन क्वेश्चंस का मेन पर्पस क्या है कि आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है और क्वेश्चंस में गिवन होता है कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो, 3m की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो आपने b की वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लेनी है। कई क्वेश्चंस में वही वैल्यू एज्यूम करते हैं और कई क्वेश्चन में खुद आपने देखना होता है कि कौन सी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें 3m की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो आपने b को 3 एज्यूम कर लिया, 3 केसेस बने और 3 केसेस में वैल्यू पुट कर देनी है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में बता रखा है इसलिए हमने स्क्वेयरिंग करनी है। क्यूब बोला होगा तो हमने क्यूबिंग करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूब ही है, क्यूब का क्वेश्चन है। तो देखिए, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। तो जो क्यूब है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिवीजन एल्गोरिथम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बाय द डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a is equal to bq plus r and 0 is less than equal to r is less than b. Now substitute this b is equal to 3 and compare with this x is equal to 3q. Okay, b is equal to 3। 3 हमने क्यों लिया है कि जब हम क्यूब है ना इसमें, तो हम 3 का क्यूब करेंगे ना तो 27 आ जाएगा। तो 27 आएगा तो उसमें से हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आर की बी की वैल्यू 9 ले लेते हैं ना तो यहाँ पे वी गेट हियर 3 केसेस, बट इन केस ऑफ 9 वी गेट द 9 केसेस, सो वी हैव टू सॉल्व ऑल द 9 केसेस। सो इन दिस केस वी हैव टेकन 3 हियर। तो x is equal to 3q and cube of any positive integer. तो first case is when r is equal to 0. First case is when r is equal to 0. Then x is equal to 3q. Taking the cube, x is equal to 3q whole cube, we get 27q cube. Taking 9 as the common factor because we have to express the cube of any positive integer in the form of 9. So 9 as a common factor, we get 3q cube and it can be written as 9, this 9 and this one is m1 where m1 is equal to 3q cube, m1 is any positive integer. Second case is x is equal to 3q plus 1 and cubing on both the sides, x cube is equal to 3q plus 1 whole cube, we get a plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ठीक है। तो 27q क्यू प्लस 27q स्क्वायर 9q प्लस 1। अब ये जो 1 है ना ये एक्स्ट्रा है, इसमें से 9 हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं तो इसको अलग से रखना है। बाकी 3 टर्म्स में से हमने 9 को कॉमन निकाल लेना है। तो 9 इज टेकिंग एज कॉमन, वी गेट 9, हियर वी गेट m2 प्लस 1 वेयर m2 इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ओके, नाउ द थर्ड केस व्हेन r इज इक्वल टू 2, here we can write when एक step लिख लेना है when r is equal to 2 and here when r is equal to 1, x is equal to 3q plus 2, cubing on both the sides, same formula a plus b whole cube, we get this one. Now 8, here we get 8, 8 में से हम 9 को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं तो हमने इन 3 टर्म्स में से कॉमन निकाल लेना है। तो 9 is taking as common and here we get 9m3 plus 8 where m3 is equal to this term. तो इस क्वेश्चन में हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। वी हैव 3 केसेस हियर। फर्स्ट केस इज 9m1, सेकंड इज 9m2 प्लस 1, 9m3 plus 1. m1, m2, m3 that are the positive integers and can be written as the same positive integer, that is m. So last में आपने लिखना है therefore the cube of any positive integer can be expressed in the form of 9m 9m plus 1 or 9m plus 8. Clear? Okay, the next is fundamental theorem of arithmetic.
व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? जैसे आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ था, वैसे ही आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी पढ़ा हुआ है। और सबसे पहले क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। की जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हर एक कंपोजिट नंबर जो है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द primes, and this prime factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So x is equal to p1, p2, p3, so on up to pn. You have to write in this form. X is the composite number and it can be expressed as the product of primes. So p1, p2, p3, pn, they are the primes apart from the order in which they are written. So p1 is less than equal to p2 dash is less than equal to pn, means ये जो p1 ये जो p2 है that is greater than p1, or it may be possible that the two values are same. For example, every composite number, तो 32 is the composite number because it has more than 2 factors. ओके तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 raised to power 5. सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम. ये 2 का प्रोडक्ट है ना, और 2 क्या है? दैट इज द प्राइम नंबर. तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए. 42 है फॉर एग्जाम्पल, 2 इंटू 3 इंटू 7. तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इज प्राइम फैक्टर, 3 इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर, 7 इज द प्राइम फैक्टर. तो इन विच P1 is 2, P2 is equal to 3 and P3 is equal to 7. So P1 is less than P2 is less than P3. इस वे में ये प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा है, ये जो आपको लिखवाया था. कोई केस हो सकता है जिसमें 2 फैक्टर्स हो जाए सेम. ठीक है, तो जैसे है आपके पास 84, तो 84 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 3 से 12, 7 जा 84. अब देखिए ये 2 और 2 जो है वो सेम है. तो अब ये P1 हमने लिया था, इसको P1, P2, P3, P4, तो ये आ जाएगा P1 इज इक्वल टू P2, ये दोनों अब सेम है, इज लेस देन इक्वल टू P3, इज सॉरी इक्वल नहीं लगेगा, इज लेस देन P4. ठीक है, तो ये इस तरह से करना. Now the next is exercise 1.2. In this worksheet we have to find in the first question we have to find the prime factorization only. Express each number as the product of the prime factors. तो prime factors जैसे आप लोअर क्लासेस में निकालते थे. 140 के prime factors सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, we get 72, 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 70. तो 142 can be written as 2 raised to power 2 into 5 into 7. Okay, now I'm doing the fourth part, 5005. First factor is 5, we get 1001, then 7, 143, then 11, 13, and 13 ones is 13. तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 5 into 7 into 11 into 13. ठीक है, 5 cases are there, 2 cases I have done, 3 cases you will do yourself. Now the second question, find the LCM and HCF of the LCM and HCF we have to find, and then verify the relationship with the LCM into HCF, the product of the two numbers. ये भी आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है. तो इसमें फर्स्ट केस क्या है? 26 into 91. तो 26 के फैक्टर्स बना लेने, ऐसे बनाने ऐसे बना लो, नहीं तो डायरेक्ट अगर आते तो डायरेक्ट बना लो. 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91. ठीक है, तो HCF क्या होता है? HCF होता है जो दोनों में कॉमन है. तो 13 इज कॉमन इन बोथ द केसेस, तो 13 इज द HCF. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? 13, और हाईएस्ट होना चाहिए, तो दोनों की पावर जो है वो 1 ही है, तो यही हाईएस्ट है, तो HCF इज इक्वल टू 13. नाउ द LCM. LCM क्या होता है कि आपने सभी वैल्यूज लेनी है, 2 इंटू 7, और इन दोनों में से एक लेनी है 13, तो LCM आ जाएगा 182.
और वेरिफिकेशन के लिए क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो HCF वी हैव द HCF इज 13, LCM is 182 and product of two numbers means the numbers which are given, that is 26 into 91. तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 2366, इनको मल्टीप्लाई किया 2366. हेंस अगर दोनों नंबर सेम है तो हेंस इट इज वेरीफाइड. ओके, नेक्स्ट इज ये सेकंड क्वेश्चन के जो वन पार्ट मैंने करा दिया, सेम सेकंड और थर्ड को आपने करना है. LCM और HCF आपने निकालना है और वेरिफिकेशन करनी है इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके. थर्ड क्वेश्चन है आपका HCF और LCM निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे अभी किया है. 12, 15 एंड 21. 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 is 12, 2 raised to power 2 इंटू 3. 15 के 3 इंटू 5, 21 के 3 इंटू 7. 3 टर्म्स आर दियर. HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखो कॉमन क्या है इसमें, 3, इसमें भी क्या है 3, तो 3 इज द कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3. LCM इज इक्वल टू, LCM में आपने क्या करना है, LCM में आपने सभी नंबर्स लेने हैं. तो यहाँ पे 2 raised to power 2 है, जो हाईएस्ट पावर होगी LCM के लिए आपने वो लेनी है. तो 2 स्क्वेयर और 3 तो दोनों में 3 रेज टू पावर 1 ही है, 5 रेज टू पावर 1 है और 7 रेज टू पावर 1 है. इसको ले लेना है तो मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 420. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, 23 एंड 29. 17 के प्राइम फैक्टर्स 1 इंटू 17, 23 के 1 इंटू 23, 29 के 1 इंटू 29. तो HCF इज इक्वल टू 1 एंड LCM इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29, वी गेट 1139. ओके, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं. जो पार्ट्स मैंने नहीं किए हैं उनको आपने सॉल्व करना है. और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल सेम है, HCF इंटू LCM दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है. थैंक यू.